Hello students, now be ready for study. Friends, myself Dipan Parikh and I am going to teach you maths chapter number 15 probability. Okay? Students, in previous video we discussed introduction of this chapter. In introduction part we can recall some points. Okay? So we discussed in last video experimental or empirical probabilities, then theoretical or classical probabilities, then we discuss an elementary event, then we discuss impossible event, and sure or certain event also we discuss. Then we discuss some of the probability of an event of same experiment is always equal to 1. This point we discuss. Then another point, complementary event. Okay, so in complementary event we discussed that formula form as PE plus PE bar is equal to 1 and its derived form that PE bar is equal to 1 minus PE. ये पॉइंट हमने डिस्कस किए हुए हैं. एंड probability always lies between 0 and 1 means 0 less or equal PE less or equal 1. तो ये सारे पॉइंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए हुए हैं. So now we can proceed towards our today's work with the solution of some examples. Okay, and afterwards you may follow homework also. Okay, so our today's work we can start. Example number 5. Two players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. यहाँ पे 0.62 संगीता की probability, winning probability यहाँ पे already दी है. So we can find what is the probability of रेशमा winning the match. तो यहाँ पे रेशमा की हमें probability winning the match की find करनी है. Okay, so now we can proceed for its solution. तो यहाँ पे हम assume करेंगे, suppose means let S denote the event of संगीता wins the match. तो हम यहाँ पे S लेंगे. Okay, for the event संगीता wins the match. Okay, and R we can take as the event that रेशमा wins the match. तो दोनों का हमने सिंबॉलिक फॉर्म सिलेक्ट कर लिया. S फॉर संगीता एंड R फॉर रेशमा. ओके, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी की दी हुई है 0.62. इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एज प्रोबेबिलिटी of the event that Sangeeta wins the match. PS is equal to 0.62. So the probability of Reshma's winning. Okay, तो हमने जो अगले वीडियो में डिस्कस किया था जो फार्मूला, वही पार्ट यहाँ पे हम फॉलो करेंगे. ओके, सो PR, what is PR? It is the probability of Reshma's winning the match. So PR is equal to 1 माइनस PS, यानी जिसे हमने डिस्कस किया था कि PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1. तो उसमें से यहाँ पे हमें वही फॉर्म मिला है कि हमें PE बार इज इक्वल टू 1 माइनस PE, यानी यहाँ पे PR हमें फाइंड करना है. तो 1 माइनस PS यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा जो हमें मेज़र दिया हुआ है 0.62, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. And we can, as the event R and S are complementary, जैसा मैंने बताया. So we get the result as PR is equal to 1 minus PS is equal to 1 minus 0.62 and we get the result as 0.38. ओके, तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला वो किसके लिए है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमाज विनिंग द मैच.
ओके, सो यहाँ पे हमें आंसर मिला 0.38. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स. What is the probability that both will have different birthday? It is important students. And the same birthday. यहाँ पे दोनों की बर्थडे अगर एक ही दिन आ रही है या तो डिफरेंट डे में है, वो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. और यहाँ पे हमें क्या करना है, इग्नोरिंग अ लीप ईयर. व्हाट इज़ लीप ईयर? यू नो वेरी वेल. ओके, इन लीप ईयर टोटल नंबर ऑफ डेज आर 366 and in non leap year there are 365 days. ओके, तो यहाँ पे हमें इग्नोरिंग अ लीप ईयर यानी हमें नॉन लीप ईयर को फॉलो करना है. ओके, सो नाउ वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स इट सॉल्यूशन. आउट ऑफ द टू फ्रेंड्स वन गर्ल से सविता's बर्थडे कैन बी एनी डे ऑफ द ईयर. इस दोनों में से एक गर्ल क्या कहती है, सविता's बर्थडे कैन बी एनी डे ऑफ द ईयर. इस साल में कोई एक दिन उसकी बर्थडे आती है. नाउ हमीदा's बर्थडे कैन ऑल्सो बी एनी डे ऑफ 365 डेज इन अ ईयर. क्योंकि नॉन लीप ईयर है इसलिए 365 डेज में से कोई भी दिन बर्थडे हो सकती है. ओके, वी एज्यूम दैट दिस 365 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली. सो फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट बर्थडे, क्योंकि दोनों की बर्थडे अगर डिफरेंट डेट पे है. ओके, सो इफ हमीदा's बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम सविता's, सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर हर बर्थडे इज 365 माइनस 1. यानी हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने मिलेंगे, 364 मिलेंगे. इज दैट क्लियर? फॉर whom? फॉर हमीदा's बर्थडे, क्योंकि वो सविता की जो बर्थडे थे उससे वो डिफरेंट डेट पे उसका बर्थडे आता है. तो 365 डेज में से वन डे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, तो हमें मिलेगा 364 डेज. सो हमीदा's बर्थडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम सविता's बर्थडे, क्योंकि 365 डेज में एक दिन किसका बर्थडे है, सविता का है, तो वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है. ओके, इसलिए हमें 364 फेवरेबल आउटकम्स मिला है फॉर हमीदा's बर्थडे, क्योंकि हमीदा का बर्थडे डिफरेंट है सविता के बर्थ डेट से. तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास है 364 एंड टोटल आउटकम्स है 365, तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलेगी 364/365. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, द सेम बर्थडे, अगर एक ही दिन दोनों का बर्थडे ईयर के अंदर आ रहा है, ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी फॉर सविता's एंड हमीदा's हैव द सेम बर्थडे. तो यहाँ पे फार्मूला, क्योंकि जो बर्थडे डिफरेंट डे पे था उसको हम अब सेम डे पे फाइंड कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी. सो 1 माइनस पी मीन्स प्रोबेबिलिटी बोथ हैव डिफरेंट बर्थडेज. ओके, सो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो 1 minus 364/365 and we get the result as 1/365. So in this way we can derive both the answers. If different birthday then we get result as 364/365, and if the same birthday then we get the result as 1/365. Okay, so by using this formula we can derive this result. Is that clear students? Now the next question, there are 40 students in class 10th of a school of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. जैसे क्लास के अंदर क्लास रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन होता है. ओके, सो she writes the name of each student on a separate card. Okay, class teacher writes the names, each names
his student's name on a separate card and the cards being identical. Then she puts cards in a bag and stir them thoroughly. सारे कार्ड्स को एक बॉक्स के अंदर रख के उसको मिक्स कर देती है. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of girl or a boy? तो दोनों की हमें यहाँ पे probability find करनी है. So now we can proceed towards solution. So total number of students in the class 40. So there are 40 students and only one name card has to be chosen. यानी टोटल 40 नेम से उसमें से कोई एक नाम वहाँ से निकलेगा, या तो वो गर्ल का हो सकता है या तो बॉय का. ओके. सो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 40. हमें यहाँ पे टोटल कार्ड्स कितने हैं? 40 है. तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 40 होंगे. ओके. द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर अ कार्ड विद द नेम ऑफ गर्ल्स. अब यहाँ पे गर्ल्स कितनी है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 25. तो अगर गर्ल्स है तो 25 हमारे लिए फेवरेबल होगा अगर गर्ल्स के लिए हम फाइंड करें, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द गर्ल नेम. ओके. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कार्ड विथ नेम ऑफ अ गर्ल, जो कार्ड क्लास टीचर पिकअप करेंगे उसमें गर्ल का नाम निकल सकता है. ओके. सो प्रोबेबिलिटी फॉर द गर्ल we get 25 by 40. It means its reduced form as 5 by 8, that you know very well how to calculate it. Okay. Now the number of outcomes favorable for a card with the name of a boy, and here in the question given as there are 15 boys. So favorable outcomes for the boy 15, and for the probability, क्योंकि यहाँ पे भी total number of possible outcomes कितने हैं? 40 है. तो probability for the card with a name of a boy we get 15 by 40, and its reduced form we get as 3 by 8. So 5 by 8 for the girl and 3 by 8 for the boy. Okay students, now we can also determine probability for a boy by taking, इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं उसको, जैसे हमने आगे वाले क्वेश्चन में फॉलो किया था कि जो हमें प्रोबेबिलिटी मिली है, ओके, किसकी? गर्ल की. तो हमने डिस्कस किया था कि जो इवेंट है PE डैश इज इक्वल टू PE बार इज इक्वल टू 1 माइनस PE. ये फार्मूला भी हम यहाँ पे अप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी कार्ड विथ अ नेम ऑफ अ बॉय. तो यहाँ पे 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे 5 बाई 8 हमने डिराइव कर ली प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल्स, वो वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट द रिजल्ट फॉर द बॉय एज 3 बाई 8. तो इस मेथड से भी हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं. इंडिविजुअली भी करेंगे और दोनों मेथड एप्लीकेबल है. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, 2 ग्रीन एंड 4 रेड मार्बल्स. यहाँ पे आप देखो कि नंबर्स डिफरेंट है. 3 ब्लू, 2 ग्रीन एंड 4 रेड मार्बल्स. इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से कोई एक मार्बल निकालना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ब्लू एंड रेड? ओके. नाउ वी कैन प्रोसीड इट्स सॉल्यूशन. Saying that a marble is drawn at random is a short way of saying that all the marbles are equally likely to be drawn. अगर एक मार्बल लेना है उसमें से तो तीनों कलर की पॉसिबिलिटी तो इक्वल ही है, लेकिन नंबर ऑफ मार्बल्स डिफरेंट है. ओके. सो देयरफॉर द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो टोटल नंबर है वो हमें मिलेगा. यानी यहाँ पे आप देखोगे कि 3 ब्लू बॉल से, 2 ग्रीन बॉल से एंड 4 रेड बॉल से. तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका टोटल हमें मिलेगा 3 + 2 + 4 इज इक्वल टू 9. यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 9 होंगे यहाँ पे, क्योंकि टोटल मार्बल्स कितने हैं? 9.
उसमें से हमें ब्लू, ग्रीन और रेड कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट लेट G डिनोट द इवेंट द मार्बल इज ग्रीन. क्योंकि यहाँ पे ग्रीन के लिए जो इवेंट ग्रीन है वो क्या है, द मार्बल इज ग्रीन व्हेन द मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम. अगर वो ग्रीन निकलता है तो उसका हम इवेंट G यहाँ पे डिनोट करेंगे. देन B denote the event the marble is blue and R denote the event the marble is red. Okay students, is that clear? Now the number of outcomes favorable to the event G. So G for green, and how many marbles in green color? 2 marbles. That's why here favorable outcomes हमारा क्या होगा, 2. Total outcomes कितने होंगे, 9 possible outcomes. Okay, so now we can find the probability for getting green marble, PG. Okay, that is 2 by 9. Okay, similarly probability for blue marble, that is PB. So how many blue marbles? In the question given as 3 marbles. Okay, 3 marbles. So probability we get for the blue ball as 3 by 9 and its reduced form 1 by 3. Next, probability for red marble. Okay, so now for the probability of a red marble, PR as 4 by 9, क्योंकि 4 मार्बल्स है रेड कलर के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिलेगी, 4 by 9. In this way we can derive the probability of green marble as 2 by 9. Then probability for blue ball it is 1 by 3 and probability for red ball is 4 by 9. Okay, in this way we can derive the probability according to the question. Now we can proceed. Note that यहाँ पे तीनों कलर्ड जो मार्बल्स है उनकी जो प्रोबेबिलिटी निकाली है उसको अगर हम ऐड करेंगे, देन इट्स सम, इट्स टोटल वी गेट एज 1. ओके, सो PG plus PB plus PR is equal to 1. Now the next question, Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. Okay, say one is of rupees 1 and other is of rupees 2. What is the probability that she gets at least one head? यहाँ पे 1 rupees and 2 rupees. Okay, so what is the probability that she gets at least one head? Now its solution, क्योंकि यहाँ पे जो कॉइन लिया है एक 1 रुपये का कॉइन है और दूसरा है 2 रुपये का कॉइन. ओके, सो फॉर head we can denote with the H and T for tail. Now when 2 coins are tossed simultaneously, अगर दोनों कॉइन को साथ में टॉस किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, जस्ट गेस. द पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड हेड, दोनों में हेड आ सकता है. हेड एंड टेल, एक में हेड और एक में टेल. जो पहला है वो हेड है, जो दूसरा है वो टेल है. देन टेल एंड हेड एंड टेल, या तो दोनों के अंदर टेल टेल आ सकता है. ओके, सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स विच आर ऑल इक्वली लाइकली. तो यहाँ पे हमें 4 रिजल्ट मिल सकते हैं अगर दोनों कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो. सो हियर व्हाट इज H एंड H. ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि जो फर्स्ट H मेंशन किया गया है, हेड अप ऑन द फर्स्ट कॉइन से ऑन रुपीज़ 1 एंड हेड अपॉन द सेकंड कॉइन इज रुपीज़ 2. यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का जो H है इट इज़ ऑफ द, कंसिडर हम करेंगे कि वो रुपीज़ 1 कॉइन का हेड है
और जो दूसरा हेड है वो ₹2 कॉइन का हेड है. ओके स्टूडेंट्स. Similarly, H and T means head up on the first coin and tail up on the second coin, and so on. So the favorable outcomes हमारे लिए क्या था, जो इवेंट था वो एटलीस्ट वन हेड, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था हमें एटलीस्ट वन हेड मिलना चाहिए. तो इन चारों आउटकम्स आप देखोगे, एच यहाँ पे एच मिल रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. ओके. तो हम देखेंगे एटलीस्ट वन हेड आर हेड एंड हेड, हेड एंड टेल, एंड टेल एंड हेड. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 आउटकम्स हमें मिल रहे हैं, 3 आउटकम्स जो हमारे लिए फेवरेबल फॉर्म में है, जो हमारी इवेंट ई के लिए है, जो क्वेश्चन में मांगा गया है. ओके. सो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज 3. ओके. एंड पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं, 4 है. ओके. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई at least one head, that is 3/4. Okay students, is that clear? कि जो क्वेश्चंस में हमें, क्वेश्चन के अंदर जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी एटलीस्ट वन हेड, तो इन 3 रिजल्ट जो हमें मिले हैं यहाँ पे, वो हमारे फेवरेबल में एटलीस्ट यानी एक हेड होना चाहिए. तो तीनों फॉर्म के अंदर एक हेड है, इसलिए ये हमारे लिए 3 आउटकम्स फेवरेबल फॉर्म में हमें मिले. और उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम्स 4 है, उसमें से निकालेंगे. सो 3/4. ओके. दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई. ओके. सो द प्रोबेबिलिटी दैट हरप्रीत गेट्स एटलीस्ट वन हेड इज 3/4. ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? नॉट यू कैन ऑल्सो फाइंड PE. इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं. लुक एट हियर, PE इज इक्वल टू 1 - PE डैश, जैसा आगे वाले क्वेश्चंस में भी आया था. तो वही चीज़ यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो सेकंड मेथड के फॉर्म में. ओके. तो नो हेड है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे नो हेड कितना है, इसमें एक भी हेड नहीं है, यानी ओनली वन टाइम पॉसिबिलिटी मिलेगी हमें यहाँ पे. ओके. तो अगर हमने नो हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगा, 1/4, यानी ये 1 और टोटल आउटकम्स हमारे 4 है, तो 1/4, यानी यहाँ पे 1 - PE बार, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट इवेंट की बात कर रहे हैं. ओके. सो हमें रिजल्ट मिलेगा 1 - 1/4, और उसका रिजल्ट कैलकुलेशन से हमें मिलेगा 3/4, जो हमने यहाँ पे डिराइव किया अभी. ओके. तो इन दिस वे ऑल्सो वी कैन अप्लाई both the method and both one applicable, okay, for the exam. Now example number 11. A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in figure. okay, यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया है. आप देखोगे कि जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो रहा है. ओके. जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसमें. So what is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको जो लेक का पार्ट दिख रहा है, ओके, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रश्ड इनसाइड द लेक. ओके. तो यहाँ पे डायग्राम में मेजरमेंट के साथ वैल्यू दी है, उसकी लेंथ, ब्रेथ, जो एरिया है रेक्टेंगुलर. ओके. सो नाउ वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन. ओके. ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट. प्लीज पे अटेंशन. द हेलीकॉप्टर इज इक्वली लाइकली टू क्रैश एनीवेयर इन द रीजन, क्योंकि जो रीजन में वो क्रैश हो रहा है मीन्स कि वो कहीं पे भी वो क्रैश हो सकता है. एरिया ऑफ द एंटायर रीजन, यानी पूरा जो एरिया है रेक्टेंगुलर पार्ट है उसके अंदर वो कहीं पे भी वो गिर सकता है. तो हम क्या करेंगे, वो पूरे रीजन का हम एरिया निकालेंगे यहाँ पे. ओके. तो उसके लिए लेंथ उसकी दी है 9 किलोमीटर और उसकी ब्रेथ दी है
4.5 kilometer. So now by using this we can find the area of entire region. पूरा जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसका हम एरिया यहाँ पे डिराइव करेंगे. ओके, सो यू नो वेरी वेल दिस फॉर्मूला L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन. तो यहाँ पे 4.5 इंटू 9. ओके, और यहाँ पे यूनिट दिया है किलोमीटर में, एंड वी नो दैट यूनिट फॉर एरिया, सो इट इज़ इन द स्क्वायर. ओके, किलोमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ एंटायर रीजन मिलेगा 40.5 किलोमीटर स्क्वायर. ये हो गया एरिया ऑफ एंटायर रीजन, यानी ये हमारे लिए टोटल वैल्यू मिल गई. ओके, कि वो कहीं पे भी क्रैश हो सकता है एंटायर रीजन में, लेकिन हमें फाइंड किसकी करनी है, क्रेस्ट इनसाइड द लेक. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि वो गिरेगा कहाँ पे, उसकी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे लेक के अंदर वो गिर रहा है उसकी बतानी है. ओके, सो नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस लेक ऑल्सो. तो यहाँ पे मेज़रमेंट दिया हुआ है, उसमें से उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हम डिराइव करेंगे. सो एरिया ऑफ लेक, ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4.5 किलोमीटर जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसकी ब्रेथ है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर, उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे. ओके, तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी लेक के लिए. 4.5 माइनस 2 मीन्स 2.5 हो जाएगा. और यहाँ पे उसका जो लेंथ दिया है रेक्टेंगुलर रीजन का, दैट इज़ 9 किलोमीटर. ओके, और उसमें से हम ये 6 किलोमीटर को सबट्रैक्ट करेंगे, तो 3 किलोमीटर हमें मिलेगा. दैट इज़ वी कैन यूज़ फॉर लेंथ ऑफ द लेक. ओके, so by using the formula length and breadth, here also we can find the area of lake like this, 2.5 into 3, okay, in kilometer square. So we get the result as 7.5 किलोमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने लेक का एरिया डिराइव किया और रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया डिराइव किया. Now by using this value we can find the probability that helicopter crashed inside the lake. Okay, so 7.5 upon 40.5. By using this value, okay, we can calculate it 75 by 405, and its reduced form we get is 5 by 27. So it is the probability that it crashed inside the lake. यहाँ पे हमने हेलीकॉप्टर जो लेक के अंदर क्रैश होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली. ओके, नाउ एग्जाम्पल 12. अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड. ओके, कार्टन है जिसके अंदर 100 शर्ट्स है, उसमें 88 है वो गुड कंडीशन वाले हैं. 8 हैव माइनर डिफेक्ट एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट. उसके अंदर जो बाकी है उसमें से 8 है वो जिसके अंदर माइनर डिफेक्ट है, और जो 4 शर्ट्स है जिसके अंदर मेजर डिफेक्ट है. और यहाँ पे दो ट्रेडर है, जिमी एंड सुजाता. सो जिमी और ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड. टोटल शर्ट्स है 100 और जिमी ओनली एक्सेप्ट गुड शर्ट्स. But Sujata, that is the another trader, will only reject the shirts which have major defect. वो सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट्स को रिजेक्ट कर रही थी. ओके, और उनको 1 शर्ट इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन. एक शर्ट्स उनको रैंडमली कार्टन से निकालना है. तो उनकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे कि इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिमी, एंड नेक्स्ट इज इट इज़ एक्सेप्टेबल टू सुजाता. So in its solution we can proceed. 1 shirt is drawn at random from the carton of 100 shirts. Okay, out of 100 shirts में से उनको एक शर्ट निकालना है. Okay, so therefore there are 100 equally likely outcomes, क्योंकि total shirts है 100
and the number of outcomes favorable acceptable to Jimmy, क्योंकि जिमी कैसे सर्च वो सिलेक्ट कर रहा है, ऑल आर गुड, सो टोटल गुड सर्च कितने हैं 88, यानी यहाँ पे हमें जिमी के लिए जो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स है वो मिलेगा 88. ओके, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर सर्च इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, वो क्या मिलेगा 88/100 एंड इट्स रिजल्ट वी गेट एज 0.88. इज दैट क्लियर? नाउ द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू सुजाता. सुजाता क्या कर रही है कि जो मेजर डिफेक्ट वाले हैं उसको वो रिजेक्ट कर रही है. तो हाउ मेनी मेजर डिफेक्ट सर्च? 4. सो 88 तो अच्छे है ही है. ओके, तो 88 + 8 यानी सुजाता के लिए एक्सेप्टेबल में कितने जा सकते हैं? 96 सर्च, क्योंकि वो मेजर डिफेक्ट वाले सर्च को वो रिजेक्ट कर रही है. तो एक्सेप्टेबल फॉर्म उसके लिए कितना होगा? 96. ओके, नाउ वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी search is acceptable to Sujata. So 96/100 and we get the probability for Sujata as 0.96. Okay students, is that clear? Now next question, 2 dice, यहाँ पे 2 डाई का हम यूज़ कर रहे हैं. ओके, and there are having different colors, one is blue color and another is gray color die. Okay, are thrown at the same time, दोनों डाई को सेम टाइम पे थ्रो किया गया है. ओके, तो दोनों में 1 to 6 नंबर प्रिंटेड होंगे, तो कोई भी नंबर आ सकता है. ओके, सो what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the die is 8, यानी दोनों का जो नंबर हमें मिलेगा उसका टोटल या तो 8 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या तो 13 हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और लेस देन और इक्वल टू 12. ओके, सो नाउ वी कैन प्रोसीड इन इट्स सॉल्यूशन पार्ट. When the blue die shows 1, पहले हम समझ लेते हैं कि अगर ब्लू डाई को थ्रो किया जाता है और उसमें 1 नंबर शो किया जाता है, ओके, होता है उसके अंदर, तो दूसरी जो डाई है, जो ग्रे कलर की डाई है, उसमें से तो कोई भी नंबर आ सकता है 1 2 3 4 5 6 में से. ओके, तो अगर हम ब्लू डाई पे नंबर जो हमें मिला है वो 1 मिला है, तो दूसरा नंबर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 में से. ओके, सिमिलरली द सेम इज ट्रू व्हेन द ब्लू डाई शोन 2 3 4 5 6. अगर ब्लू डाई में 2 नंबर मिला तो ग्रे डाई में भी कोई भी नंबर आ सकता है. अगर ब्लू डाई में 3 नंबर मिला तो ग्रे डाई में से कोई भी नंबर आ सकता है. ऐसे 2 3 4 5 6 नंबर अगर ब्लू डाई शो कर रहा है तो दूसरी डाई में, ग्रे डाई के अंदर में से कोई भी नंबर वहाँ पे अपीयर हो सकता है. ओके, तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा समझते हैं. द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो. तो जो दोनों डाई के जो रिजल्ट, पॉसिबल रिजल्ट्स कैसे मिल सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड इट हियर विद द डायग्राम पार्ट इन दिस टेबल. सो देर आर 2 डाई, ब्लू एंड ग्रे. ओके, तो यहाँ पे दोनों के 1 to 6 नंबर मेंशन किए हैं, जैसे कि ये ग्रे डाई के 1 to 6 नंबर है और ये ब्लू डाई के. तो हम यहाँ पे पॉसिबल रिजल्ट जो हमें मिलेंगे वो आप टेबल के अंदर देख सकते हो कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी जो फर्स्ट नंबर है दैट इज़ फॉर द ब्लू डाई एंड सेकंड इज़ फॉर ग्रे डाई. ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 लाइक दिस. एंड द अगर मान लो ब्लू डाई 6 नंबर शो कर रहा है तो
पॉसिबल ग्रेड आई में से क्या हो सकता है, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 एंड 6-6। तो टोटल यहाँ पे हम देखेंगे रिजल्ट पॉसिबल कितने मिल सकते हैं, 6 × 6 यानी टोटल 36 पॉसिबल रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलते हैं। ओके, सो नाउ वी कैन प्रोसीड दिस solution part on the next slide. The first number in each ordered pair is the number appearing on the blue die and the second number is that on the gray die. Okay, note that the pair 1-4 is different from 4-1. हम यहाँ पे दो पेयर हमें मिली है, एक है 1-4 और दूसरी है 4-1। नंबर सेम है लेकिन वो रिजल्ट डिफरेंट है, क्योंकि 1 नंबर कहाँ पे शो हो रहा है, ब्लू डाई के ऊपर। ओके, और यहाँ पे जो 4 नंबर है वो ब्लू डाई के ऊपर ही शो हो रहा है। और फर्स्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे 4 नंबर है लेकिन वो ग्रे डाई का है, और यहाँ पे 1 नंबर है वो भी ग्रे डाई का है। यानी एक नंबर जो ब्लू डाई शो कर रही है वो 1 है, तो दूसरा नंबर 4 हो सकता है। ओके, लाइक दिस, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 × 6, 36 हमें पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। नाउ वी कैन फॉलो अवर फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारी इवेंट है ई, उसके लिए है द सम ऑफ द टू नंबर इज 8, यानी दोनों का टोटल कितना होगा, 8। वो हमें चेक करना है कि कौन से पेयर के अंदर हमें उसका टोटल 8 मिल रहा है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि 2 6, 3 5, 4 4, 5 3 एंड 6 2, ये ऐसे रिज़ल्ट है जिसका टोटल हमें 8 मिल रहा है। यानी यहाँ पे हम इसको देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 रिज़ल्ट ऐसे है जिसमें टोटल हमें मिल रहा है 8, यानी वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो गया ऑफ दिस इवेंट ई। ओके, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज इक्वल टू 5। नाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई, वी मेंशन एज 5/36, क्योंकि 5 हमारा फेवरेबल आउटकम है और 36 इज़ द टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 5/36। नाउ इन द सेकंड पार्ट, मीन्स सेकंड क्वेश्चन, that we can denote the event as f, and what is the question, क्या था हमें, इस टोटल इज 13। ओके, सो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे तो हमें टोटल 13 वाला एक भी पेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे ही रेंडमली अगर कंसीडर करें कि अगर दोनों डाई में 6 नंबर आ रहा है तो उसका मैक्सिमम टोटल तो 12 ही हो सकता है। तो ये कैसी इवेंट हो गई हमारे लिए, impossible event, no outcomes। okay students, so the sum of two number is 13, ये हमारा क्वेश्चन था, लेकिन वो रिजल्ट में हमें मिला नो आउटकम्स। सो उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे PF इज इक्वल टू 0/36, और वो रिजल्ट मिलेगा हमें 0, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट फॉर्म वाला क्वेश्चन है। नाउ ऑल द आउटकम्स आर फेवरेबल टू द इवेंट जी, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन था जिसमें हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट जी, और उसमें क्या था कि सम ऑफ टू नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 12, या तो टोटल उसका 12 मिल सकता है या तो उससे कम। तो जितने भी हमारे पास नंबर्स है दोनों डाई के ऊपर, उसका टोटल करेंगे, या तो 12 से कम मिलेगा या तो इक्वल टू 12 मिलेगा। तो 6 6 जैसे मैंने बोला, तो 6 6 यानी 12, दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर 12 से कम टोटल मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे हमें यूज़ करना है, यानी जितने हमें रिजल्ट मिले हैं 36 के 36 वो सारे काउंट होंगे यहाँ पे। तो ये कैसी इवेंट हो गई, श्योर इवेंट वाला पार्ट आ गया। ओके, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर जी, sum of the number less or equal to 12, we get 36/36 and we get the result as
1. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट वाला पार्ट भी इस क्वेश्चन में इंक्लूड हो गया है. नाउ from exercise 15.1, in previous video as homework question number 1 to 10 given. Now for today homework, question number 11, 12, 13, 14. Okay, kindly you have to follow these questions, read it, understand the questions and follow the steps by using the examples. Okay, here also if you feel any confusion, any query, okay, so related to solution, contact to your respective teachers. Okay, and you may ask and solve your query and confusion. Okay students, so here our chapter number 15 probability gets over. सारा पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है. ओके, सो काइंडली फॉलो all the steps properly in the question one by one. Thank you students, be safe, okay, at your home and kindly follow the work. Goodbye.